So, hello everyone, and welcome to Wise IAS. In today's lecture, we are going to discuss the population and associated issues to population. Basically, if we talk about population एक ऐसा term है, those are important for your economy point of view, for your UPSC preparation. In simple terms, अगर population की बात करें, the population is the number of people in a city or a town or a region or country or the world. Population is usually determined by the persons that you can call the census. The process every 10 years census is conducted and the population is measured. It is a process of collecting and analyzing, compiling and publishing the data in relation to the people, in relation to number of persons. So if we start with the term population, again a gentle reminder to download the Wise IAS app from the Google Play Store or Apple Play Store. So coming back to the topic, if we say without people there would be no society, man is a social animal. Man is a social animal, he cannot live in isolation. So, without people, there could be no society, there could be no economy, or there could be no culture. The current population of India is nearly at 132.42 crores, which you can see from the data of 2016 and is the second highest in the world. India is ranking the second highest in population in the entire world. Also, our population is what contributes to our socio-economic structure and the diverse cultural scenario. The population contributes. According to the World Population Prospects of 2019, which is published by the Population Division of the UN Department of Economic and Social Affairs, India is projected to surpass China in the world's most populated country by 2027. The global population is projected to increase by another 2 billion people by 2050. Population size and distribution की अगर बात करें तो the current population of India contributes to nearly 17% of the global. फिलहाल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है. यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स ये कहती हैं इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ऐड 273 मिलियन पीपल्स बाय द 2050 ईयर, बाय द ईयर 2050. सो एज पर द डिटेल्स, और अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, इंडिया के अंदर ही यूपी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ 19.98 करोड़. तो इस तरीके से टोटल जो पॉपुलेशन है यूपी की एज पर 2011 सेंसस की अगर मैं बात करूं, दैट वाज 199812341 199812341. Just have a look on the number of digits. So अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया. Population density is the total number of people per unit of area. It is largely dependent on the geographical location
और जियोग्राफिकल फैक्टर्स। आप अगर देखेंगे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत पॉपुलेटेड एरिया होते हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां बहुत कम पॉपुलेशन होती है। स्टेट्स लाइक असम, हिमाचल प्रदेश या अदर हिली टेरेन अगर आप देखेंगे वहां लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बल्कि अगर नर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दे हैव वेरी हाई पॉपुलेशन। सो इस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, हर एक एरिया की अलग अलग होती है और ये अनइवन है। अब बात करें द टोटल नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया की, ये हमने देखा कि दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। जियोग्राफिकल लोकेशन और जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे इन एरियाज में कम पॉपुलेशन है और इन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, राइट। अब ये क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं? तो आपके सामने ये हमने समराइज करके रख दिए कि इन फैक्टर्स के ऊपर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज डिपेंडेंट। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के ऊपर जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पीपल विल रिजाइड इन दोज एरिया जहां पानी अवेलेबल होगा, फ्रेश पानी अवेलेबल होगा, कैन बी इजिली अवेलेबल। ये तो है नहीं कि मटका लेके कुएं तक जाएंगे, आजकल उन एरियाज में तो पॉपुलेशन बहुत कम होगा और जिन एरियाज में टैप वाटर या फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है वहां तो आसानी से लोग रह सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर पॉपुलेशन उस एरिया में जहां फ्रेश वाटर इजिली अवेलेबल है वहां पॉपुलेशन ज्यादा होने के चांसेस हैं और कंपेयर एज कंपेयर टू जहां मटके में से पानी लाना पड़े। देन नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स। अब लोग प्रेफर करते हैं प्लेन लैंड में रहना। कौन पहाड़ी चढ़ के रोज सुबह काम पे जाए और कौन पहाड़ी उतर के रोज शाम को काम से आए, घर जाने के लिए भी थकना पड़ जाए। तो लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बहुत इफेक्ट करती हैं। जिस एरिया में सड़क ही ना हो, रेत में से गुजर के जाना पड़े, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो लैंड फॉर्म्स के जो तरीके हैं, द एरियाज आर फेवरेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जहां लोग अपना लाइवलीहुड देख सके, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगली बात करते हैं क्लाइमेट की। हैवी रेनफॉल वाले या एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे पॉपुलेशन कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेडिटेरियन रीजन, एरियाज विद कंफर्टेबल क्लाइमेट, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वेयर देयर इज नॉट मच seasonal variation, right? The next is soil. Fertile soil are important for agriculture and allied activities. तो उन एरियाज में क्योंकि लाइवलीहुड मिल रहा है, क्योंकि रोजगार मिल रहा है, उन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब लोकेशन ऑफ अ प्लेस की अगर बात करें, प्रॉक्सिमिटी ऑफ मेजर टाउन्स एंड सिटीज, उनके पास पास पॉपुलेशन ज्यादा होती, रूरल एरियाज में कम होगी। सिटी की प्रॉस्पेरिटी बहुत इफेक्ट करती है। नियरली टाउन्स जो हैं वो अफोर्डेबल हैं या नहीं, पॉपुलेशन इस पे भी डिपेंड करती है। नेचुरल डिजास्टर्स पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अब जो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया है, वहां लोग क्यों रहेंगे? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस की। अब बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, मिनरल्स की। सबसे पहले ये सारे के सारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे। मिनरल्स की अगर सबसे पहले बात करूं
एरिया विद मिनरल डिपॉजिट जो होते हैं इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं, देयरफॉर वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी। स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स की वहाँ ज़रूरत है, वो वहाँ उन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं या मूव कर जाते हैं और वहीं पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और उन एरियाज को डेंसली पॉपुलेटेड बना देते हैं, राइट। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन या गुड सिविक एम्यूनिटीज जहाँ होंगी वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। जितनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी उतना मोबिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगेन जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी और जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी वहां स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर आएगी। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर आने की वजह से वहां पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि किसी एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है तो वहां पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों होगी, वहां लोग रहेंगे क्यों, वहां लोग जाना पसंद क्यों करेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज, जो नए एरियाज हैं वो इनकरेज करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल एंड सेटिंग अ न्यू ईयर लैंड। मैन इज अ सोशल एनिमल और वो नए नए एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करता है। क्लब्स हो गए, जिम हो गए, कुछ एसोसिएशंस हो गई, और जहां ये चीजें ज्यादा होती है इंसान उसी तरफ को भागता है। अब कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिन एरियाज में कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा वहां पॉपुलेशन उस कल्चर या उस रिलीजन को फॉलो करने वालों की ज्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास आते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला है माइग्रेशन। माइग्रेशन की अगर बात करें इट मींस जब लोग यहां से वहां मूव कर जाते हैं। द पुश फैक्टर और नेगेटिव सर्कमस्टांसेस at the place of origin tend to motivate people to leave their native place to newer areas। उनको लगता है कि वहां पर जाके उनको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की और या तो वर्क या जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आपका है नेचुरल इंक्रीज। इट इज द नेट आउटकम ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इन रीजन। फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, मोर्टेलिटी ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम होगा। तो ये एक नेचुरल फैक्टर है, फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। वॉर एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिस जगह में वॉर है, अशांति है या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, उस जगह में पॉपुलेशन या लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। लोग चाहेंगे यहां तो अशांति है, सारा माहौल इस तरीके का बना रहता है, हमें यहां नहीं रहना। लोगों को शांति चाहिए और जहां शांति होगी, अमन होगा, वहां लोग ज्यादा होंगे, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब जहां डिस्क्रिमिनेशन होगा या पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा वहां पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट इज पॉलिसी। अब पॉलिसीज इनकरेजिंग माइग्रेशन
often led the population growth in the destination region. अब मान लीजिए किसी एक रीजन में ऐसी पॉलिसी बना दी जाए कि यहाँ के लोगों को अगर विदेश में जाना है तो सरकार उनकी मदद करेगी। उसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पॉपुलेशन कम हो जाएगी और डेस्टिनेशन रीजन में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्ट करती हैं इस तरीके से पॉपुलेशन को। अब बात करें, हमने ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन देखे। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, डेमोग्राफिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल हमने किए, ये दोनों हमने साथ में किए, ये हमने किए और ये हमने किए। तो इस तरीके से इन सारे फैक्टर्स ने पॉपुलेशन को इम्पैक्ट, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे वो डिक्रीज हो रही है, पर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन चेंज अगर होता है तो उसके लिए हम किसी एक फैक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसके लिए मिल बांट कर सारे के सारे फैक्टर किसी ना किसी हद तक जिम्मेदार है। So there is no single factor that can be considered as solely responsible for the concentrated or scanty population or their distribution and growth. Most of the factors described in these are interrelated and often act collectively. So, population has forced many to settle in uninhabitable region. Many of the factors. The development influenced population distribution. Many development projects or development in any of the field will influence the distribution of population. Coming to the next question. अब बात करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन की। पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम बहुत सारे फैक्टर्स से क्लासिफाई कर सकते हैं। इन दिस पार्ट वी हैव क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एज क्राइटेरिया। आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, हमने 3 तरीके की एज से पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो बच्चे हैं बिलो 15 ईयर्स, दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, सारी चीज उनको चाहिए। वर्किंग एज जो है दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। एज्ड लोग जो हैं दे कैन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे आर रिटायर्ड, दे कुड बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, they may be working voluntarily but they are not available for employment through retirement. So based on the next criteria for classifying the population could be sex. The sex ratio refers to the number of females per 1000 of males in a given area or on a specified time. The child sex ratio is the sex ratio of the age group 0 to 6 years of age in a given area on a specific time period. Transgender composition. During the enumeration of census 2011, for the first time, 3 codes were provided, that is, males 1, female 2, and others 3. In the case of respondent wish to record neither 1 or not 2, their enumerator was instructed
to record the 6 as others, that is code 3. The population of other as per census 2011 is 4,87,803. अब बात करें दिव्यांग लोगों की, 2011 सेंसस में 8 लाख हाउस होल्ड इन्वॉल्विंग डिसेबल्ड पर्सन इन द कंट्री, 8.3% जो टोटल हाउस होल्ड थे, टोटल हाउस होल्ड हैविंग डिसेबल्ड पर्सन शो एन इंक्रीज इन 5 लाख फ्रॉम द लास्ट सेंसस. लिटरेसी कंपोजिशन की अगर बात करें, लिटरेसी एज prerequisite to education is an instrument of empowerment. Literacy levels have improved considerably. They are going up since independence, and almost 2/3 of our population is now literate. 2/3 हमारी population आज पढ़ी लिखी है. अब बात करें वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन की. The population of India according to their economic status is divided into 3 groups. That could be main worker, marginal worker and non-workers. Main worker कौन होते हैं? Who works at least 183 days a year. जो 183 days से कम काम करते हैं उनको marginal. और the work participation rate could be defined as the percentage of total workers, main and marginal to the total population. यानी कि मेन और मार्जिनल को डिवाइड कर दे टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास ये आएगा दी वर्क पार्टिसिपेशन रेट. एनएसएसओ के सर्वे के 2011-12 में द टोटल वर्कफोर्स इज एस्टिमेटेड टू 41 करोड़. आउट ऑफ द 33.69 करोड़ were rural workers and 13.72 crore were urban workers. This is data basically I can just read and you just have to note it down. This indicates an economic status in which there is a larger population as dependent upon, further indicating the possible existence of large number of unemployed and underemployed people. तो बहुत सारा हमें यहाँ से जानकारी मिलती है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड लोग कितने हैं. अब बात करें एडोलेसेंट्स की. एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंट्स दैट इज अप टू द एज ग्रुप ऑफ 10 से 19 साल इज अबाउट 21%. 2011 सेंसस. द एडोलेसेंट पॉपुलेशन दो regarded as the youthful population having high potentials, but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly. अगर हम अपने यूथ को ट्रैक नहीं दिखाएंगे, हम सड़क नहीं दिखाएंगे, हम रास्ता नहीं दिखाएंगे कि भैया तुमको यहाँ पे चलना है, तो वो अपने रास्ते से भटक के कहीं गलत रास्ते में चले जाएंगे. तो they need to be channelized, they need to be guided properly. अब बात करें पॉपुलेशन पिरामिड की. पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? Basically, the age-sex structure of population refers to the number of females and males in different age groups. किस एज में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल्स हैं, ये हमें पता चलता है पॉपुलेशन पिरामिड से. A population pyramid is used to show the age-sex structure of the population. The shape of the population pyramid reflects the characteristics of the population. The male and female population are broken down into 5-year age groups represented in the horizontal bars along the vertical axis, with the youngest age group at the bottom and the
oldest age group at the top. The shape of the population pyramid gradually evolves over time based on fertility, mortality, and international migration trends. You cannot expect it to be same. If the child mortality rate is higher, the population pyramid could shrink from this side, from this side. And if the life expectancy is higher, the this side should expand in both males and females. So, under the population pyramid, we can see expanding population. The very first part, expanding population. The H6 pyramid in such a case is triangular shaped pyramid with a wide base and is typical of less developed countries. These have larger population in lower age groups due to high birth rates. That is why I'm saying it could be in developing countries or underdeveloped countries. Or you can say the less developed countries. The birth rate is very high. Then the second is constant population. Here the H6 pyramid is bell shaped. It is bell shaped, as you can see, and tapered towards the top. This shows birth and death rate are all almost equal, leading to a near constant population. The next part is declining population. This pyramid has a narrow base and a tapered top showing low birth and death rates. The population growth in developed countries is usually zero or negative. So, if we see on the trends, it is significant that the percentage decadal growth during 2001 से 2011 has registered the sharpest decline since independence. आजादी के बाद 2001 से 11 में sharpest decline आया population growth. It declined from 87% for 1981 to 1991 से to 21.54% for the period 1991 से 2001. तो हमारे पास एक स्टेबल पॉपुलेशन पीरियड है 1891 से 1921 की बात करें. फास्ट ग्रोथ पॉपुलेशन हमारे पास हुई 1921 से 1951 तक. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद 1951 से 1981 तक. और फिर 1981 के बाद population started showing down gradually. So here is the trend listed before your screen. Stable population period 1891 से 1921 तक. During the period 1891 से 1921, the growth of Indian population was very slow and it was almost stable. The decline of 1891 से 1901 and 1911 से 1921 witnessed the negative growth of population because of famines. फिर फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आया 1921 के बाद.
India's population started rising steadily. The average annual growth rate of population during the 30-year period increased to 1.22%. To absolute number, the population of India increased by 10.96 crores during the period. फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ 1951 से 81 तक. Population explosion is a situation when the size of population tend to become enormous owing to the widening gulf between birth rate and death rate. During the phase of 1951 to 1981, India witnessed the population explosion. The growth rate of population reached 2.2% by 1981. The average annual growth rate of population during the period reached 2.15%. Where post 1981 population started showing down gradually. 1981 के बाद India's population has been growing consistently, but the growth rate of population has been falling. Since independence, India population has registered the sharpest decline from 2001 से 2011. तो इस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ट्रेंड जो है, यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस ट्रेंड इन योर माइंड. Whenever you are going to frame your answer, you can make some graphical representation of this chart also. अब बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की. फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन. ये तीन चीजें हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज को डिटरमिन करती हैं. फर्टिलिटी की सबसे पहले अगर बात करें, फर्टिलिटी की अगर सबसे पहले बात करें, the actual number of births the women undergoes is broadly termed as the fertility of that women. Commonly used measures for fertility जो हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट हम कहते हैं, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये टोटल फर्टिलिटी रेट. जनरल फर्टिलिटी रेट जो होता है द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 विमेन के हिसाब से मेजर होता है. तो नॉर्मली उसी को हम पैरामीटर लेकर चले. डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाई फर्टिलिटी क्या होते हैं? रिलीजियस आइडियोलॉजी, अर्ली मैरिज, अर्ली चाइल्ड bearing, preference for sons ingrained in Indian culture, lack of a right of self-determination with reference to reproduction, economic, social and culture as well as religious values of children in the Indian society, absence of adoption of method of conception control. अब बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीज का कारण क्या है? There could be many of the reasons. High fertility rate, religious ideologies हमारी जो है, sometimes those ideologies encourages of having many number of times. I'll not comment on any of the religion, but the religious ideologies play a major role in this. अर्ली मैरिज हो जाना, जब शादी अर्ली हो जाएगी और जो फर्टाइल पीरियड है एक विमेन का, वो किस हद तक यूटिलाइज कर दिया जाएगा, या ओवर यूटिलाइज कर दिया जाएगा, या फिर मैं बोलूं ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा. प्रेफरेंस फॉर सन्स, जब तक बेटा नहीं होगा बेटी को जन्म देते जाओ देते जाओ देते जाओ. एक लड़के के लिए 4 लड़कियां पैदा करने, इस उम्मीद में कि अगला बच्चा जो होगा वो बेटा.
This is the reason. Lack of the right of self-determination and reference to reproduction. Because of the lack of the right of self-determination, औरत की, या मैं बोलूं एक स्त्री की आवाज को दबा दिया जाता है। अगर उसको चाइल्ड को बच्चे को जन्म नहीं देना, तो वो खुलकर ना नहीं कह सकती। ऐसी है हमारी इंडियन सोसाइटी। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एज वेल एज रिलीजियस वैल्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन द इंडियन सोसाइटी। जो संस्कार बच्चों को दिए गए, जो उनके पूर्वजों ने करा, और वही चीजें आगे चलती। सब एक समान नहीं है, ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, पर काफी हद तक इन चीजों का इंपैक्ट हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं। एब्सेंस ऑफ अडॉप्शन ऑफ मेथड ऑफ कंसेप्शन कंट्रोल्स कॉन्ट्रोसेप्टिव्स, इस्तेमाल करना अशुभ समझा जाता है कई जगह पे, और कहीं जगह पे देयर इज लैक ऑफ नॉलेज। सो बेसिकली these are the reasons of high fertility. इस चीज को लेके हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन को इंप्रूव करें, एनहांस सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स। सरकार जो कर रही है कर रही है, पर प्राइवेट सेक्टर को हम साथ में लेकर चलें। जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके ऊपर फोकस करें। बेसिकली ये सारी चीजें ज्यादा तौर पर वहां देखी जाती है। नई टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। देयर आर मेनी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स जिससे अनवांटेड बर्थ रोके जा सकते। पॉलिसी मेकर्स कैन हैव अ ग्रेटर इंसेंटिव, अच्छी पॉलिसी लाने पर अच्छा इंसेंटिव मिले। अब बेसिकली ये सारी चीजें अगर हम देखें, हमारी सोसाइटी में ये इस तरीके से फैली हुई हैं। द मेजर थिंग, द मेजर वर्क नीड्स टू बी डन अपॉन दिस थिंग्स, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं, दोज आर रूटेड इन दिस सोसाइटी। देयर इज अ हाई चांस ऑफ एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, because in your society part this topic and basically these all factors are deep rooted in the society। कुछ इसमें डेटा बेस्ड नहीं है, कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है, और ये सारी चीजों के साथ you just have to also provide the solution। The major solution could be educating the most vulnerable sector, the underprivileged ones, involvement of the private sector, personal initiatives। हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, पर किसी के साथ भी क्यों हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को सोसाइटी से निकाला जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। So this was all for today's lecture। I hope आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में हम पॉपुलेशन का टॉपिक खत्म करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।